Hello friends, this is Dr. Gupri and the case that I am going to share with you today is of the severe cosmetic allergy. This patient came to me with a complaint of the allergy on her face with any kind of cosmetics. However, she has taken allopathic treatment from last 2 years for her complaints and she was using the best quality products of the cosmetics for her face, but still she was getting the complaints by using them. There occurred the allergic reaction on her face. Along with that, she had a severe burning and dryness on her lips. She couldn't apply any kind of lipsticks on her lips also, and she has to keep them moist by using any kind of applications like Vaseline or something, just to keep them moist, because the little dryness on her lips, the skin of the lips get rough and start parching out. So this was the chief complaint. Along with that, the patient has a scars, dark colored scars on her face on both the cheeks, and however these scars were not very prominent, but still the patient was feeling that no, it gives the skin untoned appearance. So that is why she was concerned about it, and for that she had taken already allopathic treatment for last 2 years. She was already applying lot of cosmetic products like medicated products. I won't say cosmetic but medicated products for it, like face wash, sunscreens, everything medicated. So the first thing, okay, इसमें जब मैंने further inquire करा patient के लिए, तो as I always go with the mental symptoms, तो मैंने जब इसमें mental condition of the patient ली, तो I am not revealing any pictures because patient has strictly asked me not to reveal their identity on the social media. So keeping in privacy of the patient, I am not revealing the identity. Can't share the picture of the patient. And she was having dark circles too under her eyes, and the chief complaint in this when I take the case was patient was said, मैंने उनसे पूछा कि आपका घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, फैमिली में कौन कौन है, तो शी सेड कि शी हैड मदर इन लॉ, फादर इन लॉ एंड हर हस्बैंड एंड किड्स. तो दिस वॉज, उसके बाद मैंने पूछा कि आप मुझे ये बताए डिटेल में कि उनके साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है इन लॉज के साथ. तो शी सेड दैट कि वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, हर चीज़ को लेके उनके घर में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, उन्हें कहीं ज़्यादा अलाउड नहीं है ज़्यादा, और मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है उनके घर में, हर चीज़ को लेके टोका टाकी बहुत ज़्यादा है. शी वॉज वीपिंग बैडली वाइल टेलिंग ऑल दीज कंप्लेंट्स ऑफ हर, एंड उसके साथ उसने मेरे को बोला कि मेरे साथ ये लोग बहुत गलत बिहेवियर रखते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटलिटी, जो मेरे पास वो अपने पुराने जो शी हैड बीन मैरिड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड जो भी पुरानी बातें फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ हर मैरिज टिल डेट, जो 16-17 ईयर्स की उसकी मैरिज टाइम को हो चुका है, वो उसको भी याद कर के बार बार रो रहे थे. तो इसमें जो टोटलिटी आई टुक फर्स्ट वॉज delusions, imaginations, wrong suffered she has. wrong suffered मेरे सबसे पहला इसलिए था कि उसके साथ बहुत गलत हो रहा है फैमिली में उसकी. सेकेंड, delusion, injury, being injured, surrounding by his. सराउंडिंग्स में आपके कौन है, आपका घर के अंदर योर सराउंडिंग्स आर योर इन लॉज, तो वहाँ से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है. तो दिस वॉज इंजरी, वो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत तकलीफ हो रही है उसको अपने इन लॉस की वजह से, तो वो अपनी सराउंडिंग से इंजर्ड हो रही है. नेक्स्ट रूब्रिक जो मैंने लिया था, ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल अकरेंसेस. ड्वेल्स क्या होता है, जब आप पुरानी बातों को बार बार याद करते रहते हैं और उनको ही दिमाग में लाते रहते हैं जो बुरी चीज़ें हुई हैं. पास्ट डिसएग्रीएबल, कई बार इसमें आता है ड्वेल्स ऑन पास्ट हैप्पी मोमेंट्स, और इसमें बट डिसएग्रीएबल कि जो बुरा उसके साथ बिहेवियर है या था इन लॉस का, तो उसको लेके वो बार बार रो रही थी. ये जो मेरे सबसे एंट्री पॉइंट से 5, मैंने इसमें काफ़ी रूब्रिक्स लिए थे, उसमें इन लोगों के अगेंस्ट शी वॉज कर्सिंग दैम. जो मैंने इसमें देखा था कि इन्होंने मेरे साथ जितना बुरा करा है तो इनको पे करना पड़ेगा, इनको भी सफ़र करना पड़ेगा इन सबको लेके. तो द चीफ मेरे इसमें एंट्री पॉइंट्स थे
वो यही थे। और इस बेसिस की टोटलिटी पे जो मैंने, हाँ ये भी रूब्रिक मैंने लिया था, कर्सिंग, स्वेयरिंग, डिजायर टू कर्स। कर्स क्या होता है, जब हम किसी को मतलब बहुत बुरा बोल रहे होते हैं, किसी के लिए कुछ मतलब विश करते हैं कि इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, दैट इज कॉल्ड कर्सिंग। तो वो कर्स कर रहे थे अपने इन लॉस को। तो दिस वॉज द केस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस द टोटलिटी जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे थे, इट वॉज हायोसाइमस। आई स्टार्टेड विद हायोसाइमस 30 and after 1 week she said that she is feeling bit better than earlier. तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि अभी आपने कोई कॉस्मेटिक्स यूज़ करके देखे हैं, तो कहते नहीं, अभी मैंने इस वीक में कहीं जाना नहीं था तो मैंने कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करे। तो बाय नेक्स्ट वीक उन्होंने जब कॉस्मेटिक्स यूज़ करे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, थोड़ी सी थी बट इतनी सिवियर नहीं थी। एंड आई आस्क्ड कि आपने जो लिपस्टिक्स वगैरह अप्लाई करी, तो शी सेड हाँ कि मैंने लिपस्टिक अप्लाई करी थी, थोड़ी देर के लिए बर्निंग आई थी बट उसके बाद नहीं थी। तो आफ्टर देन आई गेव हर हायोसाइमस 200 की डोज में मैंने उनको पोटेंसी चेंज करके हायोसाइमस 200 दी थी। आफ्टर दैट की जो उनकी लिप्स की बर्निंग थी वो कम्प्लीटली ठीक हो चुकी थी, उसमें उनको फिर कोई कंप्लेन नहीं आ रही थी। और फेस के ऊपर जो स्पॉट्स थे, जो मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो इट वॉज अ स्लाइट डिस्कलरेशन, तो वो भी उनकी बेटर हो गई थी, नॉर्मल स्किन टोन आ चुकी थी फेस के ऊपर। एंड आफ्टर 3 वीक्स जो उनके बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल से, हाँ उनको डार्क सर्कल से आई रिमेंबर उनको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम भी आ रही थी। वो कहते थे कि मुझे हर थोड़ी देर के बाद रात को नींद खुल जाती है, मुझे नींद नहीं आती है फिर, और सुबह मुझे 5 बजे उठना पड़ता है बच्चों की वजह से। उसके बाद मेडिसिन देने के बाद शी वॉज स्लीपिंग अ साउंड स्लीप। वो जो भी 10-11 बजे सोते थे तो उसके बाद उनको 5-6 आवर्स की एक साउंड स्लीप आ जाती थी और उनका माइंड जो था वो रिलैक्स हो चुका था। मेडिसिन हम जब भी प्रिस्क्राइब करते हैं, हमारे को फर्स्ट होता है कि जो फिजिकल कंप्लेंट्स हैं उनके साथ साथ आपका मेंटल लेवल जो है, इधर इट इज योर स्लीपलेसनेस और द डिस्टर्बेंस इन योर माइंड और योर वीपिंग डिस्पोजिशन बाय रिमेंबरिंग द पास्ट अक्रेंसेस, तो वो ठीक होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो शी केम आउट ऑफ ऑल दोज फेसेस, शी सेड कि अब ये चीज़ें मुझे बिल्कुल भी बॉदर नहीं कर रही हैं। So this was the case that I have treated with hyoscyamus, and now the patient is completely better with our medicine. If you have any skin conditions, you can consult me at 9915031036. Have a nice day.